mind construct, gender is a social construct. And also gender is a ubiquitous as well as a dynamic phenomena, a structural and interactional process that shapes and is shaped by social life, but at the same time it also encompasses new expectations, new possibilities, and at the same time constraints also. And this understanding of gender takes into account the constraining impact of entrenched ideas and practices on human agency, but also acknowledge that the system is continually construed in everyday life, and that under certain conditions individuals they also resist the pressure to confirm the needs of the system, right? So there are different stories of grave constraints, restrictions, inequalities which are faced by transgenders, and at the same time there are also stories about possibilities, there are also stories about new expectations, and at the same time there are also stories about new kinds of resistances that occur at different periods. And I hope that in today's session, apart from knowing and getting sensitized about the Transgender Persons Act 2019 and Rules 2020, which seeks to recognize the identity of transgender persons and prohibit discrimination in inter alia the fields of education, employment, healthcare, holding or disposing of property, holding private or public office, and access to and use of public services and benefits, we will also get opportunities to reflect on the qualitative experiences of being a transgender in India, which thereby I hope would open up possibilities of understanding gender issues in a more nuanced and inclusive manner. I will now hand over the session to Shalu and Chandramohan, who will take this program forward. Thank you so much for giving your time and looking forward to a fruitful engagement. Thank you so much. We always try to see where we are lacking, and this was one era where we were really lacking. We have certain things which are not in the hand of man, right? Which are not in the hand of man. Sometimes you have various different. I will say your birth is not in your hand. I will say even your name is not in your hand. Your body is in your not hand. It is given by somebody. Right? It is given by someone else. So what is in your hand is very little. Right? When आपका नाम भी अपना नहीं है, आपकी बॉडी भी अपनी नहीं है, आप कहाँ पैदा होते हैं ये भी आपके हाथ में नहीं है. Right? तो क्या है आपके हाथ? तो एक सोशल एटमॉस्फेयर है, सोशल हमारी लाइफ है, जिसके बारे में हम जी सकते हैं, देख सकते हैं और उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हैप्पीली जी सकते हैं, वट एवर वी आर गिवन विथ. कुछ भी हमारा नाम हो, कुछ भी हमारा शरीर हो, कितना भी वो हो, तो उसको हम थोड़ा बेहतर बना सकते हैं, तंदुरुस्त बना सकते हैं, खुशहाल बना सकते हैं अपने जीवन को. पूरा समाज को, अपने आप को, यदि वो पूरा समाज खुश रहेगा तभी सभी खुश रहेंगे. So that is what I wanted to say, that we have all kind of people in our society and we should respect everyone, right? Unless until somebody try to be different, try to be something, if I say different in the sense something, हम देखिए हमारे यहाँ बहुत सारे कानून है जिसके जरिए हम किसी को सजा देते हैं. वो इसलिए देते हैं क्योंकि वो बुरा करते हैं, ठीक है, बुरा करते हैं और इंटेंशनली करते हैं, उन्हीं को करते हैं. तो उन्हीं से में यही है कि बाकी सब कुछ जो है वो सब कुछ ठीक है, ठीक है. तो इसीलिए जो है जो इसी तरह के जो हमारे जो मैं कहूँगा कि नेचुरल चीज़ें हैं भगवान के उसमें हो जाती हैं, तो उसको जो है हमें सबको एक्सेप्ट करना है, ठीक है. सोशल लाइफ में जो है जैसे हम अपना फिजिकली हैंडीकैप जो है वो भी होते हैं हमारे, सबको हम एक जो कानून के जरिए है उनके जरिए हम उनको पहचान के, उनका रिस्पेक्ट करके, उनको सोशली सिक्योर करके, उनको राइट्स को प्रोटेक्ट करना है. ये हमारा एक कर्तव्य है, एक गवर्नमेंट का कर्तव्य है
लेकिन if I say we have to do it, we have to understand it, that is the duty of the all of you, all of us, right? That is the duty of, I'll say we have this department of social sciences, so this is all, that is the duty of the society, right? Right? We were doing it otherwise also, we do it otherwise also, but there was not act was not there, rules were not there, right? Rules were not there, that rules, maybe some rules were there earlier also, but we have those rules, they are 2019 they are talking about, to 2020 they are talking about, you have various things, some things are already read, and we have to perform our duties. We have to perform our duties in as a society member, that we have to really realize these acts. जब तक आप जो इनके जो एक्ट्स बने हैं उनको आप रियलाइज नहीं करेंगे और उसका महत्व को समझेंगे नहीं, तब तक आप उनको फील नहीं होगा कि ये एक्ट तो बन गए लेकिन इसका महत्व क्या है. सो यू हैव टू रियली make them feel that this is these acts are there, we know it, and really we really make. I remember, I used to make softwares for various things, and we have to create that third gender, I'll say this possibility in the software for everywhere, so that is the first thing I have experienced, when you have to really make this as applicable, this law applicable, that in the software I have to make the third gender possibility is there, that you can fill the forms, all the forms, right? So it is very important that we as a member of the society understand, realize the things, realize the thing that it is not somebody's fault. We make rules. Why we make rules when you say that whose fault it is? It's nobody's fault, right? I just the other day was realizing, we think that those person who fly in the air through the flights and travel, they are very rich. And the other day somebody was saying, maybe the Prime Minister saying, that so many people travel through the abroad and they are very rich. It is a fact that because of the foreigners entering into this country, our culture has slightly disturbed. As a result, these people were left uncared. That should be avoided. Then we have to retain the rights of the transgender. It is not that you are giving the rights to the transgender person. It is that you are retaining the rights. Yes, because there was rights. And the olden days, they were enjoying all the rights. Last couple of centuries only, they have not been able to enjoy the rights. Now, to retain the rights, this legislation called a transgender person, Producer Rights Act 2019, which have been brought by our central government, and it's our duty to implement it properly across the country. So, media functionaries, they are playing vital role in this. Today's program, I hope, definitely it will sensitize the media functionaries to the maximum extent, and definitely, society will come to know that the importance of these transgender persons, definitely they will respect, and due place would be confirmed through this particular, the program. With these few words, I once again thank the Professor Dr. Tengeswar Kumarji, Vice Chancellor of Central University, and also I would like to extend my warm welcome to our Vice Chancellor, to our beloved pioneer institution called National Institute of Social Defense. Welcome you, sir. And also I would like to thank Dr. T. Longwaji and Dhanvi Bhattiji from Central University of Haryana for accommodating our the program. Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India, and Central University of Haryana. जॉइंटली कोलैबोरेशन से आज ये प्रोग्राम होने जा रहा है. मुझे कुछ डायरेक्शंस है. अभी रिसेंटली पार्लियामेंट कमेटी आई थी हमारे तरफ और हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस का इवैल्यूएशन किया कि आप हिंदी भाषा का आपके ऑफिस में प्रयोग करते हो या नहीं. तो उसके लिए ग्रेडिंग दिए गए. तो कोशिश, मतलब हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है डिपार्टमेंट में काम करते वक्त,
अधिकतर हिंदी भाषा का ही प्रयोग करें। अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के इस ऑडिटोरियम में मेरे सामने बैठे हुए जो स्टूडेंट्स हैं इनको बिल्कुल हिंदी नहीं समझते होंगे तो मैं इंग्लिश में बोल सकता हूँ, क्योंकि वो मेरी मजबूरी होगी। तो पार्लियामेंट कमेटी का पालन करना मैं मेरा कर्तव्य समझता हूँ। अगर इन बीच किसी स्टूडेंट को हिंदी लैंग्वेज नहीं आती है तो मैं इंग्लिश में भी डिस्कशन कर सकता हूँ, लेकिन मैं अगर आप लोग हिंदी जानते होंगे तो उन्होंने दिए हुए आदेश का मैं यहाँ पर पालन करना चाहूँगा। हाल ही में हमारा उन्होंने इवेल्युएशन किया और एक मूल्यांकन हमें एक लेटर इशू किया। अगर हिंदी भाषा का हम प्रयोग नहीं करते ऑफिस में तो शायद हमारा ग्रेड बहुत कम हो जाता, लेकिन हमको अच्छा ये ग्रेड मिला है। तो मंच पर उपस्थित इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के रिस्पेक्टेड सम्माननीय प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार सर, in the experience in the field of transgender रिसोर्स पर्सन सही बोसोतु, जो आप दिन भर में आपका सेशन लेंगे। लॉन्ग कोई मैडम, और जिन्होंने भारत सरकार के साथ बार बार संपर्क करके इस प्रोग्राम का आयोजन किया, ऐसे कश्मीरा जी। इस प्रोग्राम का आयोजन करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य है कि ट्रांसजेंडर का एक्सेप्टेंस और उनका रिस्पेक्ट और नो डिस्क्रिमिनेशन। एंड ऑफ द सेशन, जब इस प्रोग्राम का एंड होगा तब आप लोग एक प्लेज भी लेने वाले हो। कल से वो स्टार्ट हो गया, हमने एनआईएसडी में वो किया है कि जेंडर बेस्ड वायलेशन नहीं होना चाहिए। वो एक प्लेज होगा जो आप एंडिंग में लोगे। अक्रॉस द इंडिया में डिफरेंट जुडिशरी मेंबर्स, पुलिस एकेडमी, सोशल वर्क इंस्टीट्यूशंस, देन यूनिवर्सिटीज में 100+ प्रोग्राम्स हमारे हो गए सेंसिटाइजेशन। अभी हमारा जो मेन फोकस चल रहा है अक्रॉस द इंडिया में वो है मेडिकल कॉलेजेस एंड मीडिया कॉलेजेस। तो यूनिवर्सिटी के में अगर डिपार्टमेंट है मीडिया तो इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटी भी। आपने देखा होगा कि महाभारत के जमाने से ये ट्रांसजेंडर इश्यूज हमारे सोसाइटी में है। महाभारत में भी श्रीखंडी एक पात्र था, अगर किसी ने महाभारत देखा होगा तो, और कुछ पर्टिकुलर पीरियड में अर्जुन ने भी ट्रांसजेंडर की भूमिका अदा की थी। हाँ, हमारे रिसोर्स पर्सन मैडम नहीं है क्या? सही मैडम, हाँ, वो आपको इसके बारे में सारा अवेयर भी करेंगे। जब भी आप देखते हो सोसाइटी में तो काफी सालों से देखते आ रहा है कि ट्रांसजेंडर तरफ देखने का नजरिया थोड़ा ठीक नहीं था। 2019 में ये एक्ट बना, 2020 में ये रूल्स बने, और अक्रॉस द इंडिया में हमारा मिनिस्ट्री नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस के मार्फत पूरे इंडिया में इस एक्ट को इम्प्लीमेंट कर रही है। अभी ट्रांसजेंडर को निगलेक्ट करना या किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करना, उनको जॉब्स प्रोवाइड नहीं करना, ऐसा कानून का उल्लंघन होगा। अब इसके लिए सामने जाना होगा अगर कोई ट्रांसजेंडर के साथ कुछ गलत करता है तो। इस एक्ट में सजा का भी प्रावधान दिया गया है, इसलिए हम लोग सेंसिटाइज कर रहे हैं पहले, है ना। सबको पकड़ पकड़ के जेल में तो नहीं डालेंगे, सबसे पहले हमें सेंसिटाइज करना होगा। मेरे साथ जब मैं ट्रेन से आ रहा था तो एक घटना मैं आपको बताता हूँ, एक इंसिडेंट। दिल्ली में अक्रॉस द इंडिया में, इंडिया से हमने कुछ 24 मई को एक ऐड निकाला था, और अक्रॉस द इंडिया से ट्रांसजेंडर्स के लिए जो लोग, जो ऑर्गेनाइजेशन, सीबीओज एंड एनजीओज काम करना चाहते हैं, ऐसे प्रपोजल्स हमने कॉल किए थे। आफ्टर स्क्रूटनी सारा हो गया, उसके बाद हमने 1 और 2 इंडिया के कुछ स्टेट, और 8 और 9, 8 एंड 9 के इंडिया के कुछ स्टेट, इनका टीओटी ट्रेनिंग प्रोग्राम किया। इस टीओटी प्रोग्राम के लिए
चेन्नई से 2 ट्रांसजेंडर आ रहे थे, एक ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करते हैं। वो चेन्नई से आ रहे, प्रॉपर टिकट था उनके पास, प्रॉपर टिकट, फिर भी ट्रेन में उनको बैठने नहीं, मतलब ट्रेन में तो उनकी एंट्री होगी लेकिन उनका जो प्रॉपर सीट था उसके ऊपर वो बैठ नहीं पाए। वहां पर भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था कि आप तो ट्रांसजेंडर हो, आप तो बेगिंग का काम करते, डिफरेंट। उनके डायरेक्टर मेरे फ्रेंड थे और मैं महाराष्ट्र से, नागपुर से बिलोंग करता हूँ। तो जब भी गवर्नमेंट हॉलीडे सैटरडे संडे के बाद आती है, मंडे ट्यूसडे, तो मैं महाराष्ट्र मेरे फैमिली को मिलने जाता हूँ। इत्तेफाक से वो गाड़ी नागपुर होती हुई गुजरती है, वो ट्रेन, और उसी ट्रेन में मैं नागपुर से दिल्ली के लिए उस गाड़ी में इंटर किया। उनके डायरेक्टर ने मुझे फ़ोन किया कि संजय जी, आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस के कंसल्टेंट हो, सारे देश के लिए काम कर रहे हो और ट्रांसजेंडर का वायलेशन हो रहा है उस ट्रेन में, जिस ट्रेन में आप बैठे हो। मुझे मालूम नहीं था। मेरा टिकट एसी के था, वो स्लीपर में थे। उनको एसी से थोड़ा तकलीफ थी, वो मैडम को, दोनों ट्रांसजेंडर्स को। तो मैंने उनको कहा कि ठीक है, मुझे उनका नंबर दीजिए, क्या प्रॉब्लम है, मैं जाके देखता हूँ। जब मैंने देखा, उनसे डिस्कस किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि सर, हम चेन्नई से नीचे बैठ के आ रहे हैं, जबकि हमारे पास प्रॉपर टिकट है, ना टीसी हेल्प कर रहा है ना इस गाड़ी के लोग। तो फिर वो ट्रेन में मैंने ऐसे 2-3 पर्सन को पूछा कि ऐसे इस ट्रेन में कोई बैठा है कि जिसको तमिल लैंग्वेज भी समझती है और हिंदी भी समझती है, या तो तमिल और इंग्लिश समझती है या तो तमिल और हिंदी समझती है, क्योंकि जो लोग डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे उसे तमिल जानते थे। फिर मैंने इनको कहा कि टीसी को आपने बताया, तो उन्होंने कहा टीसी को बताया। टीसी भी बोल रहे थे आप बेगिंग करते हैं, आप उधर जाके बैठो, इधर जाके बैठो, हम लोग रात में नीचे बैठ के आ रहे। फिर मैंने टीसी को बोला, जो नेक्स्ट टीसी था वो, क्योंकि इनका भी 8 आवर के ऊपर जर्नी नहीं होता है टीसी का, तो 8 आवर के बाद चेंज होते हैं। जो टीसी था, मैंने उनको कहा सर, इनके पास प्रॉपर टिकट है, आप चेक कर लीजिए और उनका सीट उनको दे दीजिए, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप। तो सर, वो पिछले टीसी ने क्या किया मुझे मालूम नहीं, तो बोला उनका डिटेल्स दीजिए, मैं उनके ऊपर में अभी इसी समय एफआईआर रजिस्टर करता हूँ, ये एक्ट है। और आप लोग भी इनको जगह नहीं दे रहे, पब्लिक आप बैठी हुई है, प्रॉपर टिकट नहीं है तो बात अलग है। अब जरा सोचो, मैं ये घटना इसलिए बताई कि आज भी हमारे देश में इतना लॉ इम्प्लीमेंट हो रहा है, फिर भी उनके पास प्रॉपर टिकट होने के बावजूद भी उनको बैठने नहीं दिया गया। जब मैं उनको वार्निंग दिया कि मैं यहाँ पे बैठने वाले 2-3 लोगों पे भी एफआईआर कर दूंगा, टीसी पे भी कर दूंगा, दिस इज माय आईडी कार्ड, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये जो सब्जेक्ट है इसको मैं डील कर रहा हूँ नेशनल लेवल पर, इमीडिएटली मैं एफआईआर रजिस्टर कर दूंगा, क्या ऐसा करना है, मैं टीसी पर भी करूंगा। इसके पहले जो टीसी था, तो उन्होंने फिर समझदारी से बातें की, सर गलती हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, हमारा काम है सेंसिटाइज करना। मैं पहले बोला सबको जेल में नहीं डालना है, मैं चाहूँ तो एफआईआर कर सकता था, लेकिन सारे जेल हमको फुल नहीं करना है ना, क्योंकि हम लोग इनकम टैक्स पे करते हैं और वो वहाँ पे ऐश करेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो हाँ, जिसने क्राइम किया ही है तो उसको तो जेल में जाना ही है, लेकिन हमारा पहली ड्यूटी बनती है सेंसिटाइज करना। ये एक्ट 2019 को आया, रूल्स बने 2020 में, धीरे धीरे काम अभी इसका चल रहा है। बहुत जल्दी ऐसा होगा कि सारे देश में ट्रांसजेंडर को भी इक्विवेलेंसी मिलेगी और वो काम चल रहा है। ध्यान में ये रखना है कि ट्रांसजेंडर को आपको रिस्पेक्ट देना है, एक्सेप्टेंस देना है, एक्सेप्ट करना है उसको। किसी भी वर्क प्लेस पर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, उस्मानिया गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल एंड कॉलेज में 2 ट्रांसजेंडर अपॉइंट हुए, एक चीफ मेडिकल ऑफिसर, रिसेंटली बिफोर 1 मंथ, टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदू न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते होंगे तो सारी स्टोरी छपी हुई है उसमें, और एक मेडिकल ऑफिसर, दूसरी चीफ। लास्ट 15 डेज से मैंने उनके बहुत नंबर ढूंढा, सोशल मीडिया पे डाला, डिफरेंट, आखिर में उनके दोनों के नंबर्स मुझे मिल गए। अभी उसी हैदराबाद उस्मानिया यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज में मैं 2 प्रोग्राम प्लान किया, एक डॉक्टर्स के लिए जो फैकल्टी मेंबर है उनके लिए, और एक एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए। आने वाले दिनों में अभी जनवरी 1st वीक में वो प्रोग्राम होंगे, और उन्होंने इनिशिएटिव लिया। वहाँ पे प्राची करके एक मैडम है, चीफ मेडिकल ऑफिसर। अभी धीरे धीरे होगा, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अगर ट्रांसजेंडर्स काम करते तो सेपरेट टॉयलेट की भी व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा एक्ट कहता, मैं नहीं कह रहा हूँ।
अभी एक्ट का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता है। तो सेंसिटाइज हो रहा है धीरे धीरे ये सारा एक्ट, बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट भी हो रहा है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि इस एक्ट को आए हुए ज़्यादा दिन तो हुए नहीं, 2019 में आया, 20 में रूल्स बने, अभी तो 22 चल रहा है। नहीं तो हमारे देश में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में आया और उसकी बात हमें आज भी करना पड़ता है, क्योंकि परिवार में भी आज भी ये डोमेस्टिक वायलेंस पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। बहुत से फैमिली में आज भी डोमेस्टिक वायलेंस चलता है। एक्ट बन के 2005 में, आज 2022 चल रहा है, उसको इतना समय लग सकता है। तो हम लोग इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करके बहुत जल्दी इनके लिए सारे सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रहा है। यहाँ पे बैठे हुए जो स्टूडेंट्स जिनको ऐसा लगता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस में हमने इंटर्नशिप करना चाहिए, तो वो हमारे डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन कर सकते हैं। एक इंटरव्यू प्रोसेस होगा और उसमें आप सिलेक्ट हो गए तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस में आप इंटर्नशिप भी कर सकते हैं। दूसरी बात, जो रिसर्चर है, जो रिसर्च करते हैं, जो रिसर्च स्कॉलर्स है, बहुत जल्दी हम लोग मतलब जनवरी फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में एक ट्रांसजेंडर के लिए नेशनल लेवल प्रोग्राम्स हो रहा है। तो जो भी आप फैकल्टी मेंबर्स है या रिसर्च स्कॉलर्स है, आप एक पेपर लिख कर हमें भेज सकते हैं। आपका पेपर सिलेक्ट अगर होता है तो आपको प्रेजेंट करने के लिए दिल्ली बुलाया जाएगा। आने वाले दिनों में एक 5, 6, 7, 8 दिन के अंदर में अक्रॉस द इंडिया के सारे वाइस चांसलर को हम लेटर इशू कर देंगे कि आप अपने यूनिवर्सिटी से 2 या 3, 4 जो भी ऐसे प्रोफेसर है जो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, उनके पेपर आप भेजिए। दूसरा एक प्रोग्राम और हम बहुत जल्दी लेने वाले हैं, वो है बेगरी प्रिवेंशन, अ पर्सन एंगेज इन द एक्ट ऑफ बेगिंग। जब स्माइल का वीडियो का प्रेजेंटेशन होगा तब ये स्माइल स्कीम्स के बारे में मैं बताऊंगा आपको। उसमें 2 सब स्कीम मर्ज है, ए पर्सन एंगेज इन द एक्ट ऑफ बेगिंग और दूसरा ट्रांसजेंडर वेलफेयर। मुझे लग रहा है मैं ज़्यादा समय ले रहा हूँ, बात करना है रिसोर्स पर्सन को, क्योंकि कुछ बातें इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ आपको। और सेकंड थिंग, अगर इसमें कुछ सोशल एक्टिविस्ट बैठे होंगे तो आप लोग भी ऐसे प्रोग्राम प्लान कर सकते हैं। 1 डे प्रोग्राम के लिए हम 50,000 रुपीज पे करते हैं, और स्किल डेवलपमेंट अगर ट्रांसजेंडर का आपको करना है तो 25% के लिए 4 लाख रुपीज हम देते हैं 2 महीने का। तो आप ये भी बैचेस चला सकते हैं अगर कोई एक्टिविस्ट आगे आकर काम करना चाहता है तो। आपको जब भी ऐसा लगे कि हमें ऑफलाइन के लिए टाइम नहीं है लेकिन हम ऑनलाइन कर सकते हैं डिफरेंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा ये डिफरेंट एजेंसीज के लिए भी प्रोग्राम प्लान कर सकता है। मेडिकल कॉलेज, सोशल वर्क इंस्टीट्यूशन, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स, मीडिया प्रोफेशनल्स, पुलिस एकेडमीज, पुलिस ऑफिशियल्स, तो हम ऑनलाइन के लिए भी पेमेंट करते हैं 13,000 रुपीज एक सेशन का। वो 2 घंटे का सेशन लेना होता है, और रिसोर्स पर्सन को आपको पहले से ही बोलना पड़ता है कि मैडम 90 मिनट्स का आपको सेशन हैंडल करना है। आज भी जो रिसोर्स पर्सन यहाँ पे आए मिनिमम उनको 90% का 90 मिनट्स का सेशन हैंडल करना पड़ेगा, इट्स अ मैंडेटरी। और रिसोर्स पर्सन को मेरी एक रिक्वेस्ट है, आज जितने भी रिसोर्स पर्सन या सेशन हैंडल करेंगे तो एंड ऑफ द सेशन, जिनका सेशन बिफोर द लंच है, मैं तो रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, सिर्फ कोशिश कीजिएगा, डिपार्टमेंट की ओर से आपको रिक्वेस्ट है कि फीडबैक सेशन तक रुकने का ट्राई कीजिएगा, ताकि स्टूडेंट के जो भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस है उसके आंसर करना हमारा ड्यूटी बनता है। और स्टूडेंट को रिक्वेस्ट है कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चन कीजिए, रॉन्ग क्वेश्चन है तो भी कीजिए, क्योंकि आप लोग यहाँ पढ़ने के लिए आए ना कि पढ़ाने के लिए। आप ये मत सोचिए कि जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ या कर रही हूँ शायद मेरा गलत तो ना हो जाए और सामने वाले मुझे हंसेंगे तो नहीं, या कोई आपको हंसेंगे नहीं। ये ट्रांसजेंडर राइट्स के लिए, ट्रांसजेंडर वेलफेयर के लिए आज अपना इंपॉर्टेंट टाइमिंग्स आप दे रहे हो इस सेशन में, आपका पढ़ाई छोड़कर जो भी आज दिन भर आप यहाँ दे रहे हो, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन रॉन्ग भी है तो कोई इश्यू नहीं है, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। रॉन्ग आंसर अगर देता है रिसोर्स पर्सन तो उसके लिए वो गलत बात है। रिसोर्स पर्सन को सारी पढ़ाई करके ही सेशन हैंडल करना है। तो वो रिसोर्स पर्सन जो हमारे बहुत ही एक्सपर्ट है आज जो भी यहाँ पर है, कोई एकेडमिशियन है, कोई प्रैक्टिकल पर्सन है इन द फील्ड ऑफ ट्रांसजेंडर के, आज नेशनल एक्सपर्ट आपके सामने है। हो सकता है कि आपके तरफ से भी कुछ अच्छे सजेशन आए, और इस स्कीम में जब ये मॉडिफाइड होगी, अमेंडमेंट होगी, तो शायद आपके सजेशंस
बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट उपयुक्त हो सकते हैं, ताकि उस स्कीम्स को हम अमेंडमेंट करने में आपकी हमें सहायता मिलेगी। और लास्ट में मैं यही बोलूँगा कि ट्रांसजेंडर के बारे में आप सारे लोग मीडिया से है, और मीडिया इस देश का बहुत बड़ा आधार स्तंभ है। आने वाले दिनों में आप सारे स्टूडेंट रिपोर्टर बनेंगे, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाएंगे, कोई प्रिंट मीडिया में जाएंगे, तो आपको न्यूज़पेपर में सच्ची खबर पब्लिश करना है। तो उसके लिए आपको इंफॉर्मेशन भी करेक्ट पता होना जरूरी है। ये एक्ट क्या है, क्या करता है ये एक्ट, क्या प्रोविजन है इस एक्ट के अंदर में ट्रांसजेंडर्स के लिए, ये सारे पहलू पर आज आप प्रकाश डालिएगा जरूर। दूसरी बात, जिस समय आपको ऐसी हेल्प लगती है कि ट्रांसजेंडर इश्यूज को लेके, तो मैं मेरा यहाँ पे मोबाइल नंबर और मेरा ईमेल आईडी दूंगा, आप उस पर मुझे मेल भी कर सकते हैं। जो भी सहायता रिगार्डिंग टू द ट्रांसजेंडर इश्यूज को आपको लगेगी वो मुझे आप मेल कीजिए। हमारे डिपार्टमेंट में जो भी प्रोविजन है, जितनी सहायता मैं आपके लिए कर सकूंगा 100% वो करने की कोशिश करूंगा। और लास्ट में मेरे आपसे सभी को हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे मेल पर फीडबैक जरूर भेजिएगा। ये फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिसोर्स पर्सन ने आपका सेशन कैसा हैंडल किया, क्या आपको क्या लगा इस प्रोग्राम से, आप क्या चाहते हैं, आपका सजेशन क्या है, आप मुझे मेल कीजिए। इट शुड बी वेरी कॉन्फिडेंशियल, ना कहीं आपका नाम आएगा ना कुछ आएगा, ये इंप्रूवमेंट करने के लिए होता है फीडबैक। तो आप फीडबैक मुझे जरूर भेजिएगा मेरे मेल पे sanjay.nisd2@gmail.com पर, मैं लिख दूंगा। यहाँ पे कश्मीरा जी को बोल दूंगा मेरा नंबर और मेरा ईमेल आईडी स्क्रीन पर एक बार शो कर देना। एंडिंग में अभी मैं इतना ही कहूंगा कि एम्पैथी एंड सिंपैथी, ये दोनों चीजें आप अपने पास रखिए। आप सारे एजुकेटेड पर्सन से, मीडिया, कोई सोशल वर्क, कोई सोशोलॉजी रिसर्चर, पीएचडी स्टूडेंट्स, एमपी स्टूडेंट्स, तो मैं ये अंडरस्टूड करता हूँ कि आप एम्पैथी एंड सिंपैथी ये दोनों बातें समझते हो, और ये दोनों बातें अपने हृदय में भर भर के रखो, तो ही हम बहुत अच्छे से ट्रांसजेंडर राइट्स के लिए काम कर सकेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। थैंक यू वेरी मच रिस्पेक्टेड वाइस चांसलर सर, आपने अनुमति दी इस प्रोग्राम को कंडक्ट करने की। मैं और आपसे अपेक्षा करूंगा कि आने वाले दिनों में जो भी आपका यूनिवर्सिटी का एनुअल एक्शन प्लान होगा, उसमें 4-5 प्रोग्राम ऐसा प्लान कीजिए डिफरेंट सब्जेक्ट पर, ताकि हमारे स्टूडेंट तक हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस कौन सा एक्टिविटी करता है, हम स्टूडेंट तक पहुंचाने की जरूर कोशिश करेंगे। कश्मीरा जैसे स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी में है, पीएचडी स्कॉलर्स है, वो हमारे डिपार्टमेंट में टीओटी का ट्रेनिंग भी उसने कंप्लीट किया। तो कश्मीरा जी तो हमारे टच में है, आप कश्मीरा जी के थ्रू भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ आपके दिमाग में, आपके जहन में ऐसा कुछ प्लान हो, इनोवेटिव प्लान, तो वो भी आप डिस्कस कीजिएगा। एनआईएसडी आपको क्या हेल्प कर सकती हो बताइएगा जरूर, हम वो भी हेल्प आपको करेंगे इनोवेटिव, अगर आपके दिमाग में कुछ प्लान है ट्रांसजेंडर, बेगरी और सोशल डिफेंस इश्यूज को लेके। ये 3 डिवीजन को मैं हैंडल करता हूँ, सोशल डिफेंस इश्यूज, देन बेगरी प्रिवेंशन और ट्रांसजेंडर वेलफेयर। ये तीनों सब्जेक्ट्स के लिए आपको कभी भी कुछ भी हेल्प लगी तो जरूर मुझे बताइएगा। एंड लास्ट रिक्वेस्ट एक बार फिर ऐसी है, प्लीज कम टू द दिल्ली एंड विजिट द एनआईएसडी। आप दिल्ली जरूर आइएगा, किसी ना किसी काम से आपका दिल्ली आना हुआ तो हमारे एनआईएसडी को आप विजिट कीजिएगा जरूर। और कुछ लिटरेचर आपके काम में आता हो तो हमारे एनआईएसडी से आप लेके जा सकते हैं। कम्युनिटी के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, जो भी आप कुछ काम करना चाहोगे एज अ सोशल वर्कर, वॉलंटियर, सोशल एक्टिविस्ट बन के, तो आप अपने लेवल पे कर सकते हैं। जहाँ पर जो हेल्प चाहिए रिलेटेड टू 3 सब्जेक्ट, सोशल डिफेंस इशू, ट्रांसजेंडर एंड बेगरी प्रिवेंशन, इनके लिए हम जरूर हेल्प करेंगे। अब एनआईएसडी क्या करता है 1-2 मिनट में बताता हूँ, मेरा मतलब मैं फिनिश करता हूँ मेरा। एनआईएसडी ड्रग एब्यूज पर भी काम करता है, एनआईएसडी सीनियर सिटीजन के लिए भी काम करता है। अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए भी कुछ प्रोग्राम प्लान करना चाहोगे तो हमारे तरफ वो डिवीजन भी है सीनियर सिटीजन, सिर्फ उसको हैंडल मैं नहीं करता, लेकिन कोई अलग ऑफिसर करता है, ठीक है। लेकिन इसके सारे डायरेक्टर ये किए डॉक्टर आर गिरिराज, ठीक है। और ड्रग एब्यूज के लिए भी हमारे पास एनसीडैप डिवीजन है।
जिसके थ्रू स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल जो ड्रग एडिक्ट मतलब कुछ बच्चे हैं, कुछ एडल्ट पर्सन है, उनके सेंसिटाइजेशन के लिए भी काम होता है। उसका भी आप प्रोग्राम चला सकते हो, सेंसिटाइज कर सकते हो अपने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को, ताकि वो ड्रग्स से दूर रहे, अल्कोहल से दूर रहे और एडिक्ट ना बने, डी एडिक्ट रहे। नंबर ऑफ सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम है। तो जब भी आपके कॉलेज के कुछ प्रोफेसर्स है जो सोशल इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, प्लीज़ एक बार दिल्ली जरूर आइएगा हमारे एनर्जी डिपार्टमेंट में, और सारे डिवीजन को विजिट कीजिएगा, NCDAB, देन सीनियर सिटीजन एंड SDBPTG को। और जो आप अपने कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए या कम्युनिटी के लिए करना चाहते हो ज़रूर कीजिएगा। NSD की ओर से मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि जितना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी करने की हम कोशिश करेंगे। थैंक यू। As we do with gravity, for example, breathing, in the everyday course of events, most people have no reason to ask questions such as what makes a man man and what makes a woman woman. How is the body related to my social role? Or even how do I know what my gender is?